we had done last time systematic, right? Now, in this particular rotary vane, also you will find a similar question. Sketch and describe. Sketch and describe rotary vane steering gear system. And then there may be a B part. But normally, they say, okay, this is so type of failure is there, either that type of question or the question related to graduation. This is what is the normal way. If nothing is mentioned in the question and it is only saying sketch and describe a electric hydraulic steering gear system, then you can draw 2 ram or 4 ram, whichever is convenient to you, unless and until they specify sketch and describe rotary vane steering. So we'll have a look on the rotary vane. This is the overall picture of the rotary vane steering. This is just to visualize how it is. So this one is the rudder, as you can see. A is the rudder stock. So that means this rudder stock is coming into the steering gear compartment. And over there we have, this is a, B is the stator, this is a cylindrical body, this is a cylinder. Rudder stock is coming inside this, and this is A. A is the rudder stock coming from here right up to here. End part is tapered. The end of the rudder stock is tapered, and on that we have a rotor. This is rotor. So it is fitted onto the rudder stock. And then on this rotor we have 3 vanes. One is this one is this one, and one is this one. 3 vanes which are called rotary vanes or moving vanes. Now the concentric cylinder, that is outside B, and this rotor, they are concentric, that means center line is same. And on that outside stator we have 3 fixed vanes. This one is this, second is there, and third is here. So this 3 fixed and 3 in between. So between this fixed and this fixed we have 1 rotary vane. Overall picture is clear or any doubt? This is the arrangement. And now 3 chambers, these are the 2 lines which are coming from the power unit, that means the pump. 1 line connected to 3 chambers, other line connected to the alternate other 3 chambers. That makes the rotary vane steering. Now this was for an isometric view. Now let us have a look on principal diagram. So same thing is here. Here rudder stock is, this is a plan view if you look from top. If you see from top in the center, this light green color, this is the rudder stock. This is how it will look from top if you see. And around this is the rotor, blue color. Rudder stock at the end has got taper. So let us see if this is the rudder stock. At the end we have rotor, this is taper part. Corresponding taper is there on the rotor. यहाँ पे fit कर दिया. So on this rotor now we have this blue color 3 vanes. One is this, and one is this. They are attached to the rotor. Similarly, the red one is the cylinder, or we call it stator. On this we have 3 fixed vanes. One is this one is this one, and one is this one. If you see the rotary vanes, these 3 blue ones, they are radially extending and touching the stator. And here we have the seal, that round bluish, yellowish color. These are the seals. Similarly, the fixed vane, which is attached to the stator and extending radially inward, is sealing against the rotor surface. These are machined surfaces, so that seal can be applied here. So with this arrangement, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 chambers. And how many lines? This is the 2 lines coming from, this is the DC valve. From here, 1 yellow, 1 green. Based on which is high pressure, one will be low pressure. Return line, one vice versa. Port, if we are giving port or starboard, accordingly one will be high pressure, other will be low pressure. Now let us trace one line. Let us say if this is my high pressure line, green one. So when the pump is delivering oil, high pressure oil will come here
Now here we have a isolating valve. This will be open. So oil will come here, enter. Now it is entering, there is a passage in the stator. That is why you see here oil is entering here. And there is a passage also in the fixed vane. So fixed vane is also providing oil passage. Therefore this oil, when it is under high pressure, will come from this line, enter from here and come to this chamber. In this chamber we have fixed vane sealing against the rotor, moving vane sealing against the stator. That means this becomes my high pressure chamber. Because of this pressure, force will be exerted, this being fixed, so it will try to move the rotor in anti-clockwise direction. Force applied will depend upon the pressure multiplied by the area of the vane. So that force is acting here. Now let us move forward. This same line is coming here and we have a isolating valve here. Through this it will enter this fixed vane and come in this chamber. In this chamber also it will act and try to move this vane because this is fixed anti-clockwise. Similarly it comes here through this isolating valve, enters here into this chamber, acts on the blue which is the moving vane, also trying to move it in anti-clockwise direction. So that means three vanes are now subjected to high pressure. What happens to the other ones? If it moves anti-clockwise, the oil from here must be pumped out. So it follows the yellow line. Yellow line से ये वाल्व खुला हुआ है, इस yellow line से इधर आया, ये आया, वापस पंप को चला गया. Same thing will happen to this chamber and same thing will happen to this chamber. So from three chambers oil is returning, three chambers oil is entering. So the total torque applied is 3 times what is acting on one particular vane, and where it is acting on the centroid of this particular, which is rectangular shape. है ना, वेन तो ऐसी है, रोटर पे लगी गया है, यहाँ पे ऑयल लग रहा है. So we can say the effective force is here. This multiplied by the distance from the center line of the stalk, that is the torque acting, multiplied by 3 because same thing is happening on 3 vanes. That is the total torque which will turn the rudder stalk. When rudder stalk turns, rudder will be turning. Now let us see this position. This is midship position. So we have equal distance this side as well as this side. So we must be able to move it from here to here 35 degrees, right? And vice versa, starboard side also. So this provides us total 35 this side movement and 35 this side movement. And so if this yellow is the high pressure line, it will act in the opposite direction. It will move starboard side up to 35 degrees on either side. Sometimes they say, why 3 fixed and 3 stationary or the vanes are used? Can we use more? Because if I use more vanes, create more chambers, then obviously my force will be more, torque will be more. So answer is no. Pardon? Because we need 70 degrees movement and we cannot have more than 3 fixed, and total 6 हमने ले लिए है ना already. Therefore there is not this also, because these fixed valves also have thickness, that much angle is lost. This is also this much thick. Similarly all other vanes, they are thick enough, so we have to account for that angle lost from this. Also there is one more thing here, that the vane should, when it moves, it will move but not exactly face to face with this vane. Correct? It actually movement is slightly more than 35, maybe 40, right? But what we do here is, these fixed vanes also act as a mechanical stopper. अगर आपका फ्लश हो गया, मान लो ये फिक्स वेन की ये मूविंग है, घूम करके यहाँ आ गई, अब आपने तो दूसरी साइड में घुमाना है इसको, तो जगह ही नहीं कोई बच्चे ऑयल के लिए प्रेशर डालने के लिए, है ना? That is one reason. Second reason is we do not want it to go beyond 35. So mechanical stops are required. So mechanical stop कैसे लगाएंगे हम? ये मेरी फिक्स वेन है, ये मैंने ये बेल्ट कर दिया इसके ऊपर मैकेनिकल स्टॉप.
अब ये वाला वेन आई आके घूम के यहाँ टच कर गई ना, अब इससे ज़्यादा जा नहीं सकती, तो वी हैव ए स्पेस है, correct? So if I want to turn it other way around, oil can still leave because this is only mechanical stop. Mechanical stops are required as condition. It is a classification requirement. इसमें कौन सा सब चाहिए? इसमें दिखाया नहीं है उसने, इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे this will be here, correct? ये फिक्स वेन पे यहाँ होगा और इस साइड पे भी होगा. सिमिलरली यहाँ फिक्स वेन पे दोनों साइड पे स्टॉपर्स हो गए. So that to prevent, in case of control system failure, if the rudder still keeps turning, तो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, तो जाके रुक जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा. लिमिट स्विच उससे आगे लिमिट जाने नहीं देगा, उससे ज़्यादा जाएगा. ये मैकेनिक है, उससे पहले लिमिट पहले अप्लाई हो जाती है एक्चुअली. सो अगर वो भी फेल हो गई तो मैकेनिकल स्टॉप. सेम थिंग इज देयर इन केस ऑफ रैम टाइप. रैम टाइप में सिलेंडर है, रैम यहाँ से आया, अंदर आया, एक पोजीशन पे यहाँ पे मैकेनिकल स्टॉप लगा दिया. जैसे आपने देखा ना ट्रेन के डेड जाता है ट्रैक का, तो वहाँ से हाइड्रोलिक वाले स्टॉपर लगे होते हैं. मान लो किसी वजह से इंजन बंद नहीं हुआ तो आगे वो एंड पे वो स्टॉप पे जाकर रुक जाती है. जो भी वैगन है या रेलवे लाइन में अक्सर देखोगे जहाँ डेड एंड है, उसके आगे ट्रैक नहीं है, वहाँ ये लगे होते हैं स्टॉपर. तो रैम के अंदर भी सिलेंडर के अंदर एंड में स्टॉपर लगा हुआ है. तो दैट मीन्स दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रडर अरेस्टर्स. वो रडर अरेस्टर में छोटा सा आपको मैं दिखा दूंगा, वो नोट में आया एक दो बार आपके. तो सो वी हैव स्टॉपर. सो दिस बिकॉज ऑफ दिस रीजंस वी कैन नॉट प्रोवाइड मोर देन 3 फिक्स्ड एंड 3 मूविंग वेन्स. इसका मटेरियल क्या होता है मैकेनिकल स्टॉप का? सब स्टील के हैं, माइट सब स्टील. So and the only thing is they have to be this they have to be strong because दो चीज़ है वही, इसमें पैसेज भी है मेरा ऑयल का, और दूसरा it has to act as a stopper as well. These yes, we are coming to that. So now if you see here this line which is supplying oil, and in the beginning we said this is high pressure. So this is a high pressure chamber. This high pressure chamber is connected to the yellow one, and here we have the bypass. If we want to turn the rudder stock for whatever reason, we have to open this one and bypass, close this one so that no oil is coming and we can turn it to this for the maintenance purpose. So that is why we have the bypass valves also. Similarly, if you see there is one more between yellow and the green, we have two relief valves. These relief valves are also called shock valves, as we discussed in the ram type. In case there is a high pressure developed in the system, we should be able to release. So अगर तो ये high pressure है, ये वाली green line, तब तो ये pressure ये वाल्व खुलेगा इधर से और इधर pressure release हो जाएगा. अगर yellow वाली है, ऊपर भी तो येलो है. हाँ कोई बात नहीं, लेकिन ये इधर से रिलीज, ये इट कैन नॉट ओपन फ्रॉम दिस साइड. आपने देखा ना एरो दिखा रखा है इसमें. दैट मीन्स इफ आई अप्लाई प्रेशर द वॉल विल नॉट, इट इज वन वे. ओपन होगा तो नीचे वाले के ऊपर. हाँ, अगर ये प्रेशर ज़्यादा हो गया, ये अगर हाई प्रेशर है, ये ज़्यादा हुआ तो ये इस लाइन से लो प्रेशर वाली में चला गया. अगर लो प्रेशर वाली हाई प्रेशर, आपने स्टार्बोर्ड मूवमेंट दिया है तो वो हाई प्रेशर हो गई, तो वो तो ऊपर वाला खुल जाएगा, तो फिर वो इधर से रिलीज होकर लो में आ जाएगा. तो दो वाल होते हैं ये, एक ही ब्लॉक में दो रिलीफ वाल्व फिटेड होते हैं. सो दिस इज फॉर प्रोटेक्शन. ओके, अब हम आते हैं, अगर आपको ये डायग्राम बनाने में दिक्कत है, वैसे तो आपके पास कंपास इंप्रेशन होती है, कलरिंग करके बनाओगे तो बढ़िया नंबर ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन अगर ना भी बना सको कोई बात नहीं, तो आप ये वाली डायग्राम बना सकते हो. सिंपल है, इतनी बना दो. ये वाली ये मूविंग वेन्स हो गई, ये वाली फिक्स वेन हो गई. आई थिंक दिस इज व्हाट इज गिवन इन योर, वो कर लो प्रैक्टिस, ये कर लो. कोई अपने टाइम के हिसाब से कि आपको इतने टाइम में क्वेश्चन कंप्लीट करना है. यू कांट जस्ट स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम ऑन कि व्हाट ब्यूटिफिकेशन करूँ मैं. हालांकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है, CAD भी दिखा रखी है ना, इसमें थोड़ा दिस इज लिटिल मोर देन, हाँ मोर देन रिक्वायर्ड. लेकिन होता क्या है एग्जाम में, ऑलवेज सम स्टूडेंट्स they do more, slightly more to get higher percentage, है ना.
नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। फैंसी मैंने देखा है तो शीट में बड़ा अच्छा फुटेज में खींचते हैं डायग्राम, और डायग्राम आप हमेशा याद रखना, आप लिखो कुछ या ना लिखो, डायग्राम नीडेड है। बस जितनी अच्छी डायग्राम बनाओगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। Pardon? This one, okay. Now यहाँ के पहले का सिस्टम जो है इट इज सेम फॉर रैम टाइप एंड फॉर 4 RAM हो या 2 RAM हो, या because only actuator is different. Now as far as this valve is concerned, as I told you, there are 2 types of steering gear systems. One is variable delivery pump. Variable delivery pump में we are changing from high pressure to low pressure by the changing the position of the switch plate. System change कर रहे हैं. But second design has fixed delivery pump. उसकी पिच चेंज नहीं होती, उसकी switch plate फिक्स है एक एंगल का, भी चेंज नहीं होती, तो उसको कोई पंप स्ट्रोक लीवर की जरूरत नहीं है, तो ये ऐसे ही फिक्स हुआ है। तो इसका मतलब उसकी डिलीवरी कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज भी नहीं होगी, रिवर्सिबल नहीं है वो, तो वो हम रिवर्सल करते हैं यहाँ सॉलोनॉइड वाल्व पे। तो अगर हमने सॉलोनॉइड की ये पोजीशन हुई तो ये वाली लाइन ऐसे हो गई, ये हाई, इधर से हाई प्रेशर गया, इधर से लो गया, इसको दूसरी साइड का एनर्जाइज हुआ तो क्रॉस अपोजिट साइड का सिंपल है बस। हाँ, इधर से इधर करने वो दिखाया था, ऐसे शिफ्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड डिलीवरी पंप। दोनों डिजाइन अवेलेबल हैं शिप्स के ऊपर। सम शिप्स हैव वेरिएबल डिलीवरी पंप, सम हैव फिक्स्ड डिलीवरी पंप। So that is what is shown here. दोनों पे लाइन होना पड़ेगा ना उसको, इनलेट और आउटलेट। यहाँ पे दोनों पे लाइन होगा ना, इनलेट और आउटलेट। ये है ना लाइन, अभी इस पोजीशन में देखिए, पहले लाइन नहीं है, दिस इज न्यूट्रल, तो इसका मतलब ये दोनों बंद हैं अभी ना, इस लाइन ये दोनों आइसोलेट हो गई है, इसका मतलब ये वेन मूव नहीं कर सकती, बी से इट इज हाइड्रोलिकली लॉक्ड। अगर आपने सॉलोनॉइड एनर्जाइज कर दिया, ये वाला इधर आ गया, इधर वाला एनर्जाइज किया, ये यहाँ आ गया, तो ये वाली लाइन इधर कनेक्ट हो गई, दिस पोर्ट इज कनेक्टेड हियर, दिस पोर्ट इज कनेक्टेड हियर, तो एक हाई प्रेशर हो गई, लो प्रेशर हो गई। अगर ये वाली इधर आ गई, स्पूल वाल्व शिफ्ट हुआ, दूसरा सॉलोनॉइड एनर्जाइज हुआ, तो क्रॉस हो जाएगी इधर वाली इधर, यानी कि लो पहले जिसमें लो थी उसमें हाई प्रेशर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी चेंज द डायरेक्शन, इधर वी अप्लाई ऑन दिस साइड और दिस साइड ऑयल प्रेशर। तो ये तो आपने सिंपल डायग्राम, चाहे ये वाली बनाओ या ये वाली बनाओ, अप टू यू। इसको वो वाला रैम वाले में यहाँ से, ओके। नाउ ओवर हियर दिस पर्टिकुलर, इन दिस केस ये ग्रीन लाइन से यहाँ हाई प्रेशर आया, लेट अस अज्यूम this pressure is also coming here, but this wall is closed, it is connected to low pressure side, correct? तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बंद है वाल्व तो यही हाई प्रेशर रहेगा, ये this is low pressure side, but if there is some problem in this particular unit and if I still want in emergency to operate, तो अगर मैं इसको कर दूं तो बैक प्रेशर नहीं रहेगा, बाकी तो चलते रहेंगे ना मेरे। ये मैं खोल दिया तो बाकी दो में चल, इट इज टर्निंग बिकॉज ऑफ द टू, बट ऑयल इस साइड का जो ऑयल है और ये वाले साइड का ऑयल इक्वलाइज होता रहेगा। इफ द वेन इज मूविंग, ऑयल विल जस्ट शिफ्ट फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, देयर विल बी नो बैक प्रेशर। बट प्राइमरली इन दिस केस इट इज यूज्ड इफ वी वांट टू हैव ए पर्टिकुलर पोजीशन and we have the failure and then we want to position it midship, let us say, we can turn it by keeping the bypass valves open and manually using it we can turn and then again close the valve। ऐसी ग्राफ में फिर वो आइसोलेशन बंद करना पड़ेगा, बंद करना, इज द मैनुअल। These are manual valves. Automatic valves are only required in case of tanker, gas carriers, chemical tankers or passenger vessels where we say Safematic is required, which should be automatically opening and closing। Safematic के 100% और 50% वो डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, सिंपल है, जेके धर वाली। अगर उसने पूछ लिया व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर टैंकर सो एंड सो साइज, तो आपने वही फटाफट ड्रॉ कर देनी है। टैंकर के लिए 100% नहीं चाहिए, सो सेकेंड डायग्राम वही आप बना लेंगे तो वो ऑल Safematic यू कैन एक्सप्लेन। ओके, छोटे जहाजों पे Rotary vane, yes. The reason is it is very difficult.
पे ये था नहीं, मैं बात कर रहा था कि शायद ये 10,000 से छोटे बार्जिस वर्जिन पे बड़े प्रॉब्लम इस पे क्या है रोटरी वेन में? पहली बात तो ये ऑक्सिलरी पूरा देना दिस इज कंसिडर्ड इज इक्वलेंट. सपोज आई हैव इफ आई हैव ए रोटरी वेन, देन दैट शिप मस्ट नॉट रिक्वायर डुप्लीकेशन ऑफ यूनिट्स, है ना? यानी कि 2 रैम के बराबर हो गया ये. 2 रैम में बेसिक स्टीयरिंग मेरी पूरी होती है. आपने 2 पंप लगा रखे हैं, मेन और ऑक्सिलरी, एक बड़ा एक छोटा या दोनों सेम साइज. यू आर कंप्लाइंग विद मेन स्टीयरिंग रिक्वायरमेंट एंड ऑक्सिलरी स्टीयरिंग यू कैन प्रोवाइड. Nobody will ask you. But if it is a tanker and you need duplication, then either, or if it is a passenger ship, then you can have two rotary vane units, one on top of other on the same rudder stop. Then it is equivalent to 4 amp steering, and then will be passed by the class. Otherwise, no. So basically we should have 2 rotary vane systems. Okay. Now, as far as tanker is concerned, we have certain minimum requirements. The tanker must fulfill those requirements. उस requirement में क्या है? वो अभी हम आएंगे वैसे requirement पे. 4-5 हैं, एक नहीं है. We have to comply with all those requirements. जिनमें से एक ये भी है कि you must have 2 identical power actuating systems, है ना? तो इसका मतलब I cannot have one motor of different pump, motor and pump of one size and second of another size. No, you cannot have. Both will have to be same size, right? And then this, along with that actuator, should give me 28 second requirement. अब एक नहीं हुआ, मान लो एक फेल हो गया, तो दूसरा वाला भी मेरे को तो दे रहा है मेरे को. और तीसरी चीज ये है उसके अंदर टैंकर्स, केमिकल टैंकर, गैस कैरियर में कि अगर फेल होता है पावर यूनिट तो 45 सेकंड्स के अंदर अंदर इमरजेंसी वाली मोटर चालू होकर हमको स्टीयरिंग देना चाहिए. इधर बाय स्टार्टिंग द सेकंड मोटर, और बाय अगर पावर फेल हो गई तो इमरजेंसी जनरेटर चालू शुड गिव मी द विद इन 45 सेकंड्स. स्टीयरिंग शुड बी बैक टू. ठीक है. अभी इस वाले में प्रॉब्लम क्या है कि ओके, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम स्टीयरिंग. इट कंसिस्ट ऑफ, छोटा सा है, इसमें लिखने में कोई आप ऐसे एक बार समझ लेंगे तो लिख ही सकते हैं. एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू मच. दिस कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, ए सिलिंड्रिकल स्टैटिक केसिंग. स्टेटर तो फिक्स है, इट इज नॉट मूविंग, which usually has 3 internal vanes which project radially inward. 3 vanes projecting inward and sealing against the rotor. A rotor keyed to and concentric with the rudder stop. Rotor जो है rudder stop पे आ भी गया है, तो वो टेपर पे भी है, corresponding taper on the rotor, और keyed है. उसके ऊपर 3 वेन लगी हैं जो कि extend कर रहे हैं radially and sealing against the stator. And they form spaces between rotor vanes and moving vanes. So that is what it forms. This is basic construction. Total 3 moving, 3 fixed. Total forming 6 spaces, 3 connected to one line and other 3 connected to the second line. 2 ही लाइन होंगी पंप से हमेशा, चाहे वो वेरिएबल डिलीवरी पंप हो या फिक्स डिलीवरी पंप हो. Always 2 lines will be there. Now the problem here is, we will see, let us, you want to write, you can write. जी सर, आपका Okay. वो हमने ले लिया फोटो ले लिया सबसे. बढ़िया है. The spaces formed between stator and rotor vanes are used as high and low pressure chambers. High pressure and low pressure chamber कर गया. अब इसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं ये भी लिखना जरूरी है, क्योंकि आपने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया. It is compact, occupying about 1/10 the space of a ram type. Very compact. बीच में आ जाती है, थोड़ी सी राउंड शेप है. So it is compact and it occupies less space. That is advantage. For the same torque, the cost is less than ram type. Light in weight, requires less maintenance. So these are the advantages. Disadvantages. It has a long oil sealing path.
लॉन्ग ऑयल सीलिंग पाथ। वो किस लिए? ये आपकी वेन है ना, दिस इज द वेन। चैम्बर बनाने के लिए यहाँ से तो ये सील कर रही है स्टेटर से, तो यहाँ पे सील आती है, इसमें ना ग्रूव बना होता है और इसमें स्टील स्ट्रिप्स होती हैं, वो टच करती है स्टेटर को ताकि सील कर सके। जो हमने गोल गोल दिखाया ना, एक्चुअली इट इज ए फुल। तो ये वाली साइड पूरी सील होनी चाहिए, ये वाली सील होनी चाहिए और ये सील होनी चाहिए। सो इट हैज़ गॉट ए लॉन्ग सीलिंग पाथ एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज फॉर हाई प्रेशर। रैम टाइप में कितना प्रेशर होता है? 200 बार के आसपास होता है, 200 215 इतना होता है। इसमें कितना होएगा? 100, ओनली हाफ। तो अगर मेरा प्रेशर कम है, फोर्स बढ़ाने के लिए साइज बड़ा करना पड़ेगा, करेक्ट? और प्रेशर नहीं मैं बढ़ा सकता क्योंकि ये लीक करनी शुरू हो जाती है फिर यहाँ से, विच इज़ अ डिसएडवांटेज। सो दिस लॉन्ग सीलिंग पाथ इट इज़ अ डिसएडवांटेज। सो ओनली लो प्रेशर इज यूज्ड। प्रेशर इज लिमिटेड टू अबाउट हाफ ऑफ रैम टाइप ड्यू टू डिफिकल्टी इन सीलिंग। सो वी कैन नॉट यूज सेम 200 बार, इसीलिए हम बोलते हैं जहाँ टॉर्क रिक्वायरमेंट कम है वहाँ ज़्यादा ये सक्सेसफुल है। दूसरी चीज़ है, इट इज़ ए कांस्टेंट टॉर्क मशीन। कांस्टेंट टॉर्क मशीन इसलिए कि कोई भी, ये मान लो मिडशिप है, 35 इधर 35 इधर, चाहे तो वो यहाँ हो या 30 पे हो या 35 पे, कहीं पे भी हो, टॉर्क इज सेम। सेंट्रॉइड पे लग रहा है और सेंटर लाइन से जो आया फोर्स इनटू डिस्टेंस दैट। सो टॉर्क इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एंगल, जो मर्जी आप एंगल दे दो, सेम टॉर्क, विच इज नॉट गुड। रैम टाइप में टॉर्क इंक्रीजेज एज द एंगल इंक्रीजेज। वो क्यों होता है? क्योंकि वो हंटिंग सिस्टम नहीं हंटिंग फंटिंग छोड़ो, ये मेरे ये फीडबैक हाँ क्या थी? स्टेटमेंट कांस्टेंट टॉर्क। कांस्टेंट टॉर्क का मतलब है कि फिर से ले लो ना कॉपी। ये एक वेन ले रहे हैं हम, एक वेन, ये रोटर के ऊपर ये वेन लगी है हमारा। इसको टॉर्क कैसे लग रहा है? ऑयल प्रेशर यहाँ एक्ट करेगा, तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया ऑफ द वेन इज द फोर्स। वो लगी यहाँ पे सेंट्रॉइड पे, रेक्टेंगुलर है तो टॉर्क कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस। दिस इज द टॉर्क, इन द सेंस। ठीक है ना? अब ये मान लो यहाँ की जगह ये आपने मिडशिप से किया, 15 डिग्री पोर्ट हो गया। अब क्या हुआ? अभी भी वही रहा, टॉर्क तो सेम रहा ना। ऑयल प्रेशर 100 बार है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है, टॉर्क इज सेम। इधर स्टार्टवर्ड दे दो, सेम थिंग, टॉर्क इज नॉट चेंजिंग, एरिया इज कांस्टेंट एंड प्रेशर भी कांस्टेंट है ना। 100 बार हम तो पहले कह रहे हैं कि सीलिंग ठीक से नहीं होती, इसलिए हम 200 बार नहीं कर सकते। तो प्रेशर इज नियरली 100, क्योंकि डिज़ाइन 100 110 इससे ज़्यादा नहीं होता है। इसका मतलब एट ऑल एंगल्स। अब इसके मूव, ये जब मूव कर गया तो रोटर जो आया मेरा, रोटर घूमता है, रोटर से रोटर स्टॉक, तो दिस इज सेम एज रडर एंगल ना। सो एट ऑल एंगल्स ऑफ द हेल्म आई हैव द सेम टॉर्क। यहाँ तक तो ठीक है। अब आते हैं हम रैम टाइप पे। रैम टाइप पे सिचुएशन हो गई चेंज। लेट अस से दिस इज 2 रैम, ये मेरा टेलर है, ये एक रैम है, एक ये दूसरा रैम है। या तो इधर से एक्ट करेगा, इधर से एक्ट करेगा, ये टेलर है। रैम जब घूमेगा तो ये रैम हमेशा स्ट्रेट लाइन में घूमता है ना। रैम इज मूविंग स्ट्रेट लाइन, तो एज लेट अस से दिस इज द मिडशिप पोजीशन। अब ये रैम घूमा तो ये इसके अंदर स्लाइड करेगा। टेलर विल, दो इसके जो डिज़ाइन होता है रैम, इसको बोलते हैं रैम स्लाइड अरेंजमेंट, विच कन्वर्ट्स लीनियर मूवमेंट इनटू एंगुलर मूवमेंट। तो जब मान लो यहाँ पे तो फोर्स इनटू डिस्टेंस ये है ना। अब ये रैम यहाँ आ गया तो ये टेलर ऐसे हो जाएगा। अब आप देखो ये डिस्टेंस बढ़ गया, टॉर्क बढ़ गया, फोर्स तो वही है, 200 बार का एक्ट कर रहा है। सो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है टॉर्क, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता है टोटल लोड जो है ना, टर्निंग टॉर्क की रिक्वायर्ड हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। मिडशिप पे जब रडर है मिनिमम रेजिस्टेंस होती है उस टाइम में। जब रडर ऐसे है ना तो रेजिस्टेंस इज मिनिमम, जैसे जैसे देंगे तो बढ़ती जाती है। सो मोर एक्चुअली एज वी गिव मोर टॉर्क इज नेसेसरी टू मेंटेन द रेट ऑफ टर्न, वरना स्लो हो जाएगा। तो उसमें रैम टाइप में टॉर्क बढ़ता जा रहा है क्योंकि टिलर की जो इफेक्टिव लेंथ है वो चेंज होती है। So that is not a constant torque machine. Rotary wheel is a constant torque machine. तो कांस्टेंट और डिसएडवांटेज कैसे? वो इसलिए हुआ कि जब रडर क्यों, ये आपका शिप क्यों घूमता है, वाई द शिप टर्न्स व्हेन यू गिव ए हेल्प।
नहीं रडर तो घूमता पर वो कर क्या रहा है, ये मेरा इस ऐसे जा रहा है जहाज ना, ऐसे जा रहा है ना। अब क्या हुआ कि इस पे मिनिमम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मिनिमम है। अब जब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे नहीं, इधर पीछे अगर आफ्ट साइड ये है, तो जब मैं ऐसे करता हूँ देन व्हाट हैपेंस, द फोर्स जिसका फॉर्मूला भी है एफ एस वी एन रेज टू पावर, जो भी है एक एफ एस वी रेज टू पावर एन इज द फोर्स विच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। अब एक्चुअल में क्या है, इसका जो कंपोनेंट नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द रडर है, दिस इज द वन विच गिव्स यू ए फोर्स परपेंडिकुलर टू दिस। इसकी वजह से आपकी स्टर्न इधर जानी शुरू हो जाती है, तभी आपकी एंगल, तभी आपकी हेडिंग चेंज होनी शुरू हो जाती है। सो दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द रडर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड विच विल बी मोर एंड मोर so as the angle increases, so the force required is progressively more and that we are compensating by more and more torque। जैसे जैसे रडर चेंज होता है एंगल, साथ साथ टिलर की चेंज होती जा रही है मेरी लेंथ। टिलर पहले इतना ही था, ये रैम से ये इतना ही था, इसका इतना टॉर्क से घूमना शुरू किया। अब रडर जब और घूमता जा रहा है तो ये बढ़ के मेरा इतना हो गया, तो फोर्स तो वही रहा 200, ये तो लीनियर ही रहेगा, रैम तो ऐसे ही घूमेगा। सिर्फ टिलर जो है ऐसे ऐसे घूम रहा है, उसकी वजह से रडर स्टॉक भी ऐसे ऐसे एंगल में तभी घूमेगा ना। तो जब ये यहाँ से ऐसे हो गया तो माई डिस्टेंस फोर्स इज सेम, डिस्टेंस हैज इंक्रीज तो टॉर्क हैज इंक्रीज। दिस एडिशनल टॉर्क हेल्प्स इन ओवरकमिंग द एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस विच हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द रडर। इसमें दो फोर्स आते हैं, एक तो ये और दूसरा फोर्स जो आता है वो इसको हील देता है, द होल शिप हील्स बिकॉज व्हेन यू गिव योर 20-30 या हार्ड ओवर दोगे और स्पीड भी ज़्यादा है, विच इज बेस्ड ऑन स्पीड, देन द